اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونجیبہ وخیرۃ فی خلقہ حافظ سرہ مبلغ رسالاتہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ صلوات پڑھے گا محمد۔ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کی جائے، خود کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہر جمعہ میں تقوی کے متعلق بیان ہوتا ہے، تھوڑی سی بات کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی بچنا ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ اللہ سے ڈر کر کس سے بچنا ہے؟ معصیت سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، خوف الجلیل اور جو اچھے کام ہے وہ کر کے اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہونا، یہی تقوی ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو ہمارا دشمن قرار دیا ہے، دوست اور دشمن کو پہچاننے کی بات کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے شیطان کی بات کی کہ اللہ نے کہا ہے شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، بڑا دشمن ہے۔ اور بھی دشمن ہے، انسانوں میں بھی دشمن ہے، اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ لیکن شیطان پہلے جنات میں سے تھا، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور ملائکہ کے بز میں بیٹھتا تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کر تو اس نے تکبر کیا، کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، آگ سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسی مٹی سے پیدا کیا۔ اب اللہ نے اس کو وہاں سے نکالا کہ تو نکل جائے یہاں سے، کیونکہ تکبر کرنے والوں کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ تو اس نے بھی اللہ سے چیلنج کیا، بما اغویتنی، تو نے جب مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پہلے ہی اس نے کہہ دیا۔ اور دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، تمام آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی تھی۔ اور پیچھے سے بہکاؤں گا، سامنے سے بھی بہکاؤں گا، چاروں طرف سے بہکاؤں گا، اور تو کوئی تیرا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو جو بھی تیری اتباع کرے گا، تیری اطاعت کرے گا، تیرے راستے پر چلے گا، اس کو اور تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایک کلیئر کٹ بات ہے، ایسی بات ہے کہ جو ہمیں معلوم نہیں کتنے سال پہلے ہوئی تھی، کہاں پر ہوئی تھی، اس کا زمان کیا ہے، اس کا مکان کیا ہے۔ یہ جو باتیں ہوئی ہیں جو قرآن میں ہمارے پاس ہے، ایک ہوتا ہے زمانہ، ایک ہوتا ہے مکان، ایک ہوتا ہے زمان۔ یعنی زمان یعنی وقت، کہاں کب ہوئی، اور ایک ہوتا ہے مکان، کہاں ہوئی، کب ہوئی یہ بھی ہمارے سوچ سے باہر ہے، اور کہاں ہوئی یہ بھی ہمارے سوچ سے باہر ہے۔
लेकिन ये बात हमें मालूम पड़ गई कुरान के जरिए, ठीक है। तो अब उसने शुरू की अपना काम शुरू किया। जैसे ही अल्लाह ने कहा कि आदम और हवा तुम दोनों जन्नत में रहो, खाओ पियो जो भी, आराम से रहो, लेकिन सिर्फ एक दरख्त के पास मत जाना। अब शैतान ने गुमराह किया उनको, कहा कि वो अल्लाह ने इसलिए तुम्हें मना किया है क्योंकि अगर आप वो खाएंगे तो यहाँ हमेशा रहेंगे, और हो सकता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां हमेशा रहना चाहते थे, वैसी जन्नत थी। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि वो जन्नत नहीं जिसका वादा अल्लाह ने बाद में इंसानों से किया है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि हुम फिया खालिदून, तुम हमेशा वहां पर रहोगे। लेकिन यहां पर देखा है कि जो जन्नत में गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन यहां पर आया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलना पड़ा और दुनिया में आना पड़ा। अब दुनिया में भी शैतान ने अपना काम शुरू किया। हाबिल और काबिल एक दूसरे को दुश्मन करार दिया और फिर हसद डालकर एक का कत्ल करा दिया। शायद एक किस्सा मैं बताया नहीं हूं कि इन्होंने दोनों ने नजर की थी, एक की नजर कबूल हुई और दूसरे की नजर कबूल नहीं हुई। तफासिर में इसलिए ऐसा भी आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, क्योंकि भाई बहन तो शादी नहीं कर सकते, तो जुड़वा पैदा होते थे। एक तफासिर में ऐसा है कि हुरें आई, लेकिन हाबिल जो है उसकी बहन जो है, काबिल की जो बहन थी खूबसूरत थी, जिसके साथ हाबिल को शादी करना था, और इसकी जो बहन उतनी खास नहीं थी। तो यहां पर उसने कहा कि मैं मेरी बहन से ही शादी करूंगा। एक तफसीर में एक ऐसा भी आया है, लेकिन इस वजह से वो अल्लाह के सामने कुर्बानी पेश की गई। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और उसको हसद हुआ काबिल को, और उसने अपने भाई को मार दिया। मारने के बाद उसको ये भी समझ में नहीं आया कि उसको दफन कैसे करें, क्योंकि पहला कत्ल था। अल्लाह ने 2 कौवे भेजे, एक कौवा एक कौवे को मारता है और फिर उसको दफन किया जाता है। तो ये तमाम बातें इसलिए बयान की गई क्योंकि शैतान किस तरह हमारे साथ धोखा कर सकता है, किस तरह हमें फंसाता है, किस तरह अपने जाल में लेता है, किस तरह क्या क्या उसके हथियार है, इसके ऊपर भी कल गुज़िश्ता जुमे को बात हुई थी। सिर्फ एक वाकया आपके सामने नजर करके इंसानों में कौन दुश्मन है उसके ऊपर आना चाहूंगा। आज थोड़ा सा मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी मुख्तसर मजलिस भी है। तो एक शख्स कहता है कि देखो, जब भी इंसान सदका निकालना चाहता है तो शैतान उसको गुमराह करता है। जब भी कोई इंसान सदका निकालना चाहता है, कोई खैरात करना चाहता है, कोई इन्फाक करना चाहता है, किसी को कुछ देना चाहता है, माली मदद करना चाहता है, तो शैतान उसको बहकाता है। तो दूसरा शख्स कहता है कि ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं चाहूंगा कि मैं खर्च करूं तो मैं खर्च करूंगा, शैतान कहां बहकाएगा। ठीक है, आप खर्च करके देखो। तो वो घर पे जाता है, घर पे जाने के बाद वो कुछ माल उठाता है ताकि खर्च करूं, देखें किस तरह शैतान है। तो जैसे वो पैसे घर में से उठाता है ताकि खैरात की जाए या कुछ किसी को दी जाए, तो उसकी बीवी चिल्लाने लगती है। उसकी बीवी कहती है कि पहले ही घर में तंगदस्ती है, पहले ही इतना है, ये है, और आप ये पैसे जो रखे हुए हैं वो भी देने के लेके जा रहे हैं। ये बहुत थोड़ा सा उनमें अनबन हो जाती है, और इतना जोर पड़ता है उसके ऊपर कि फिर वो पैसे वापस रख देता है और फिर आता है। तो उसको वही दोस्त मिलता है, क्या तुमने खैरात किया? तो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। तो कहा, देखो मैंने कहा था ना कि शैतान तुम्हारे बीच में आएगा। तो शैतान को तो मुझे नहीं मालूम बीच में आता है नहीं, लेकिन शैतान की माँ को जरूर देखा है मैंने। तो इस तरीके से शैतान अलग अलग चालें चलता है। तो ये तो हुई शैतान की बात। अब इंसानों में भी अल्लाह ने निशानदही की है कि कौन किससे दोस्ती करना है,
किससे नहीं करना है, कौन तुम्हारा दोस्त हो सकता है, किससे कितना मोहतात रहना है, इस पर भी निशानदही की है। ये जानने की इसलिए जरूरी है क्योंकि आज तो जो माहौल है, देखिए हमारा आज सऊदी अरबिया किसके ऊपर डिपेंड है, ये यहूदियों के ऊपर डिपेंड है। इन्हीं को दोस्त बनाए हुए हैं, अमेरिका को दोस्त बनाए हुए हैं। क्या ये लोग कुरान नहीं पढ़ते? कुरान पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हिदायत मिलना चाहिए था वो हिदायत नहीं है उनके पास। अल्लाह ने बता दिया है कि किससे कितनी दोस्ती करना है, किससे कितना मोहतात रहना है, कहाँ के कौन धोखा दे सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है, जो इंसानों की बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात उससे पहले ये बता दूं कि जितने भी मैं बात बयान करूंगा कि इससे इससे करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पड़ोस में कोई है तो उससे वैसी ही दुश्मनी करें, ऐसा नहीं है। अगर वो इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे दीन का दुश्मन नहीं है, हमारे दीन के राह में नहीं आ रहा है, तो उससे हुस्न सुलूक करने का हुक्म है, उसका साथ देने का हुक्म है, उससे उसकी मदद करने का हुक्म है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जिसमें तुम्हें शक हो कि ये हमारे दीन के लिए खतरा हो सकता है, या अल्लाह ने जिसके मुताल्लिक कहा है ये हो सकता है, तो उससे 4 तरह की दोस्ती नहीं की जा सकती। 4 विलायत। एक है विलायत नुसरत, यानी उसको ऐसी मदद नहीं करना कि जिससे खतरा दीन को हो जाए, हमारे मुसलमानों को खतरा हो जाए, ऐसी मदद। एक विलायत मोहब्बत, इतनी भी मोहब्बत मत करो कि वो तुम्हें गुमराह कर दे, क्योंकि अच्छा। तीसरी क्या है? विलायत विरासत, रिश्तेदारी में मत बदलो उनको। और फिर विलायत इताअत, अपना सरपरस्त मत बनाओ उनको। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कयामत के दिन, मैं शायद अगले हफ्ते आपके सामने वो बात रखूंगा कि कयामत के दिन जब आग में भी डाले जाएंगे तो लोग उनको ढूंढेंगे कि मैं क्यों आग में गिरा हूं। अल्लाह से कहेंगे कि अरे अल्लाह, अगर वो मेरा दोस्त नहीं होता तो मैं आग में नहीं गिरता। वो कहां है? तो अल्लाह कहेगा कि वो भी वहां नीचे है। तो कहेगा कि मेरे पांव के नीचे उसको लेकर आ, ताकि मैं उसको और धकेल के नीचे और डाल दूं। इतनी नफरत करेगा वो। यानी देखिए, आज हम लोग दोस्त 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 कहते हैं, ठीक है, माँ बाप जब कहते हैं बच्चों से कि इससे दोस्ती मत करो, उससे दोस्ती करो, लेकिन बच्चे नहीं सुनते। तो उसी तरीके से अल्लाह भी बता रहा है कि किससे दोस्ती करो, किससे दोस्ती नहीं करो, किसको अपना दोस्त समझो, किसका दुश्मनी समझो, क्योंकि कल फिर कयामत के दिन पछताना ना पड़े। तो ये 4 विलायत नहीं करना है। अब उसमें सबसे पहले है काफिर। काफिर किसको कहते हैं? काफिर वो इंसान है जो अपने रब को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता। 2 तरह के उसकी जो माना निकलता है, एक छुपाना, हक को छुपाना, या हक को नहीं मानना, दोनों भी वही बात हो सकते हैं। उसको कहते हैं काफिर। कफरा, छुपाना, नहीं मानना, इनकार करना। अब ऐसा काफिर जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी काफिर है, जो रसूल खुदा को नहीं मानता वो भी काफिर है। काफिर इनकार करना, नहीं मानना। जो दीन को नहीं मानता, दीन के अहकाम को नहीं मानता, वो भी काफिर है। समझो वो अल्लाह को मानता भी है और रसूल खुदा को नहीं मानता, वो भी काफिर है। अल्लाह और रसूल खुदा को मानता है लेकिन दीन को नहीं, दीन पर अमल ना करना और है, अहकाम खुदाबंदी पर अमल ना करना और है, लेकिन अहकाम खुदाबंदी का इनकार करना और है, वो काफिर है। और इमामों को भी नहीं मानना, वो भी काफिर है। या उनको हद से आगे बढ़ाना, गुलू करना, जिसको गाली भी कहते हैं, यानी हद से आगे बढ़ना, खुदा का दर्जा देना, या वो काम जो खुदा करता है कहना कि ये इमाम करते हैं, ये भी काफिर है। तो खैर, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पड़ोस में या हमारे साथ कोई काफिर बैठा है, बस में बैठा है, हम उसको नफरत से नजर से, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर वो तुम्हारे दीन के लिए खतरा है तो आप उनसे दूर रहिए। आप उनको सरपरस्त मत बनाइए, अपना सरपरस्त मत बनाइए। आप उनको रिश्तेदार मत बनाइए। आप उनको इतनी मोहब्बत मत करिए कि उनके पीछे चले। लेकिन हुस्न सलूक करना, उनका साथ देना,
ये जरूरी है, क्योंकि कुरान में ऐसी चीज को मना नहीं किया गया है जो तुम्हारे दीन के खिलाफ हो, तुम्हारे हालत जंग में हो, यानी दीन के खिलाफ। हालत जंग मतलब वही तलवार वाली जंग नहीं, किसी तरह भी तुम्हारे दीन के खिलाफ आता हो तो हालत जंग में है, तो ऐसे से दोस्ती नहीं करना। एक तो एक हो गया। कुछ आयत भी मैं आपके सामने रखूंगा, जो भी मैं पढ़ रहा हूं उसके एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुफार और मुशरिकीन के बारे में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। कुरान की ये कौन सी आयत है? अन-निसा की 144 आयत कि मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। दोस्त बनाने फिर बता रहा हूं मैं कि उनको अपने दीन के खिलाफ उनका साथ मत दो, उनका अपना सरप्रस्त मत बनाओ, तुम्हारा मुहाफिज मत बनाओ जैसे बनाया गया है। दूसरा, यहूद व नसारा, यहूद और नसारा को भी अपना दोस्त मत बनाओ। कुरान की आयत है सूरे माइदा आयत नंबर 51, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद व नसारा औलिया। ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ। बाज़ुहुम औलिया बाज़, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, असल में वो दोस्त नहीं है। असल कुरान में आया है दोस्त, यहूदी कहते हैं कि ये काफिर है, नसारा कहता है कि यहूद काफिर है, लेकिन जब इस्लाम दुश्मनी की बात आती है तो ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जैसे हुआ अभी देख रहे हैं आप ना, इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर किस तरीके से इस्लाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मारने के लिए कोशिश की वो यहूदियों ने की है। अगर जो अल्लाह ने उनको बचा लिया है, लेकिन उनकी नजर में तो मारा ही गया है, ठीक है। इसीलिए तो वो सलीब बनाते हैं, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शहीद हो गए वो उनके अकीदे के मुताबिक। तो किसने मारा? तुम्हारे पैगंबर को किसने मारा? नसारा के पैगंबर को किसने मारा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसने मारा? यहूदी ने मारा। तो तुम्हारे दरमियान बड़ी दुश्मनी होना चाहिए, लेकिन देखा है कि तुम एक दूसरे के दोस्त बने हुए हो। ये किसके खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ। दुनिया परस्त बने हुए हो, किसके खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पहले खुद पर दूसरा अपने वक्त के अंदर कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि खत्म करूं। अगर कुछ बाकी रहता है तो फिर इंशाल्लाह बाद में कंटिन्यू करेंगे। दुनिया परस्त क्यों इस्लाम के दुश्मन को हो गए ये दोनों? क्योंकि अगर इस्लाम दुनिया में फूला फला तो इनकी मईशत खत्म हो सकती है। इनकी जो इकोनॉमी है वो किस पर है? सूद पर है, और सूद को इस्लाम हराम करार दे रहा है। इनकी मईशत किस पर है? शराब पर है, इस्लाम शराब को हराम करार दे रहा है। इनकी मईशत किस पर है? जुए पर है, जुए को इस्लाम हराम करार दे रहा है। इनकी मईशत किस पर है? उरियानियत पर है, नाच गानों पर है। इस्लाम ये सब कुछ हराम करार दे रहा है। अगर इस्लाम पर सभी दुनिया चलती रहे, सभी दुनिया वाले मुसलमान हो जाए तो इनकी हालत क्या होगी? खत्म हो जाएंगे ये लोग। सिर्फ सूद को ही खत्म कर दो आप, देखो ये किस तरह खत्म हो जाते हैं। समझ गए ना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालो। ये इसीलिए कहते हैं कि कुरान के अंदर तदब्बुर की जरूरत है। कुरान को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुरान को याद करने की जरूरत नहीं है। कुरान के अंदर तदब्बुर कर उस पर अमल कर उसके निजाम को कायम करने की जरूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। एक दूसरे के दोस्त हैं ये लोग। वमन यतवल्ला मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। क्या कह रहा है अल्लाह? अगर तुम इनसे दोस्ती करते हो तो तुमको भी उनमें से एक गिना जाएगा कयामत के दिन। आज क्या है इनकी हालत? सऊदी अरबिया की पूरी सिक्योरिटी उनके ऊपर रखे हैं वो लोग। अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत माल खर्च करते हैं लोग उनके ऊपर, ठीक है। और उसके बदले में वो लोग क्या दे रहे हैं? सिक्योरिटी दे रहे हैं। इसका मतलब ये उन्हीं में से हैं।
बाज़ हुम औलिया बाज़ व मन यतवल्लहु मिनहुम फइन्नहु मिनकुम अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। देखिए अल्लाह जालिमों को हिदायत भी नहीं देता, अल्लाह जालिमों को हिदायत भी नहीं देता। दो तरह के हो गए। तीसरा मुनाफिकीन, ये घड़ी सही चल रही है ना? बिल्कुल। तीसरा मुनाफिकीन। मुनाफिक क्या है? मुनाफिक तो उससे काफिर, मुशरिक और यहूद और नसारा से मैं कहूंगा ज्यादा खतरनाक है। आज हम देख रहे हैं कि मुशरिक भी हमको दिख जाते हैं। मुशरिक कौन है? जो अल्लाह की जात में शिर्क करे, अल्लाह के कामों को दूसरे को कहे कि ये भी कर सकते हैं। काफिर भी दिख रहे हैं, यहूदी भी दिख रहे हैं, नसारा भी दिख रहे हैं। मुनाफिक कहां चले गए? कहां गायब हुए आज? नहीं, ये मुनाफिक भी है लेकिन हमारी नजर उनको दिख नहीं सकती क्योंकि वो बहरहाल मुनाफिक है। ठीक है। अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात वल अल मुनाफिकीना अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। एक मुनाफिक दूसरा मुनाफिक। ठीक है। यामुरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ, ये लोग क्या करते हैं? उल्टा काम करते हैं। अल्लाह कहता है कि तुम अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। ये बुराई का हुक्म देते हैं, अच्छाई से रोकते हैं। ये है मुनाफिक अंदर ही रहकर, और ये सबसे बड़े झूठे हैं। अल्लाह उनके झूठ को साबित करने के लिए उनकी सच बात को भी झूठ करार दे रहा है। इज़ा जाअ मुनाफिकुन, जब मुनाफिक आते हैं, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूलुल्लाह कह रहे हैं, बिल्कुल सच बात कह रहे हैं कि हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये झूठे हैं, यानी इनकी बात झूठी है। यानी कह रहे हैं सच बात, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि दिल से नहीं कह रहे हैं। ठीक है। इज़ा जाअल मुनाफिकूना कालू नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुह, अल्लाह जानता है कि तुम अल्लाह के रसूल हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही दे रहा है। आप इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। ठीक है। इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, यकीनन यकीनन ये जो काफिर हैं, ये जो मुनाफिकीन हैं, ये झूठे हैं। तो झूठों से दोस्ती भी करना नहीं है। अल्लाह कह रहा है कूनू मा सादिकीन, सच्चों से के साथ हो जाओ। ठीक है। एक और बात, आखिरी इस बात को बात करके खत्म करता हूं खुद पहला। वल्लज़ ला तत्तखिज़ू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दु मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम व अबनाहुम। अब अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम अपने बाप दादा से रिश्ता तोड़ो, तुम अपने बाप दादा से भी दोस्ती मत करो। कब? अगर ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, अगर ये लोग भी इस्लाम के दुश्मन हैं तो तुम इनसे भी दोस्ती मत करो। तो इसीलिए ये कुरान की आयत मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूं तो आपके फिर आगे बात करेंगे। ला तजीदु कौमन, तुम नहीं पाओगे किसी कौम को, युमिनूना यानी ईमान रखती हो अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरी दिन पर, युआद्दूना मन हादल्लाह, वो दोस्ती करते हैं ऐसे से जो अल्लाह की मुखालिफत करते हैं। यानी आप ईमान वालों को नहीं देखेंगे कि ऐसे से दोस्ती करते हैं जो अल्लाह की मुखालिफत करते हैं। वो वलो कानो आबा हों, चाहे वो उनके बाप ठीक हों, वो अबना हों, चाहे उनके बच्चे हों, बेटे हों, वो इखवान हों या उनके भाई हों, और अशीरत हों या उनकी फैमिली हो। आप देखेंगे कि जंगे बद्र में मौला कायनात फरमाते हैं कि जब जंगे बद्र हो रही थी तो हम कुछ लोग इस तरफ थे, कुछ लोग उस तरफ थे, कुछ लोग कुफार कुरैश और कुछ लोग ये रसूल के साथ। मौला अली फरमाते हैं कि हम में से कोई बाप किसी बेटे को कत्ल कर रहा था, कोई भाई किसी भाई को कत्ल कर रहा था, और जैसा जैसा वो कत्ल कर रहा था हमारे ईमान में इजाफा हो रहा था।
देखिए कितनी बड़ी बात है। मौला अली फरमाते हैं वलकत कुन्ना मा रसूलिल्लाह, हम जब रसूलुल्लाह के साथ थे, नकतलु आबाना, हम अपने बाबा आबाओं से, व अबना आना व इखवानना, हम अपने बाप दादा को कत्ल कर रहे थे, हम अपने बच्चों को कत्ल कर रहे थे, हम अपने भाइयों को कत्ल कर रहे थे। व अमामना मा यजीदु ज़ालिका ईमानन व तस्लीमा, ईमान हमारा बढ़ रहा था। तो यहां पर हमने ये देखा कि अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह चाहता है कि इस्लाम का निज़ाम कायम हो। अल्लाह ये चाहता है कि इस्लाम जमीन पर फैले। अल्लाह ये चाहता है कि तुम इस्लाम के क़याम के लिए काम करो, और इसके लिए जो भी सिद्धेरा हो, जो भी सिद्धेरा हो, जो भी रास्ते में आता हो, जो भी इसकी मुखालिफत करता हो, वो तुम्हारा दुश्मन है। अब चाहे वो काफिर हो, मुनाफिक हो, मुशरिक हो, या तुम्हारे घर वाले हो, सबसे आपको दूर रहना है। और सबसे बड़ा तो शैतान दुश्मन ही है। तो ये सब अगर हम जानकर चलेंगे तो हम ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे जो दीन के लिए काम करते हों, दीन के लिए आगे बढ़ते हों, दीन की जो अहमियत है उसको समझते हों। इससे यह पता चलता है कि दीन की अहमियत जमीन पर कितनी है, अल्लाह के नज़दीक दीन की अहमियत कितनी है, कितना हमको दीन के ऊपर काम करना है। तो इससे यह पता चलता है कि हमको किससे दोस्ती करना है, किससे दुश्मनी करना है, ताकि क़यामत के दिन वो मंजर पेश ना आए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें तेरे दोस्तों से दोस्ती करने की तौफीक अता फरमा, और तेरे दुश्मनों से दुश्मनी करने की तौफीक अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक़ि अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, खातिमिन नबिय्यीन, शफीइल मुज़नबीन, रहमतल लिल आलमीन, सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिन निसाइल आलमीन फातिमतुज़ ज़हरा बिन्ते रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हसन इब्न अली व हुसैन इब्न अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अल अस्करी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल हुज्जत इब्न अल हसन अल काइम अल मुंतज़र अल महदी। अल्लाहुम्मा अज्जिल फरजहु व सहिल मखरजह। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। जुमा के दूसरे खुतबे के आगाज़ में पहले अपने आप को, फिर आप सबको फिर एक मरतबा तक़वी की वसीयत करता हूँ, तक़वी की नसीहत करता हूँ। तक़वा, अल्लाह का डर है,
اللہ کے گناہوں سے بچنے کا ایک راستہ ہے اور تاکہ عذاب سے بچا جائے۔ آسان لفظوں میں تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ تقوی جہاں تک ہم سمجھتے ہوں گے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب تقوی اختیار کرو، اللہ نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے، نہیں، تمام انسانیت کو، تمام انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی اختیار کرنے سے کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی راہ نجات کرتا ہے، اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ آج ہمارا جو ماحول ہے، ہماری قوم ہے، تقوی سے دور ہے، اسی لیے ہم الگ الگ تکلیفوں میں، الگ الگ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی جو ضرورت ہے آج کی کہ ہم اللہ کے دین کو جانیں، پہچانیں اور اللہ کے دین کے لیے قیام کریں، اللہ کے دین کے لیے کام کریں، اور اسی کا نام ہے جہاد۔ تو یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ جہاد کس کو کہتے ہیں، تاکہ کبھی آپ کسی اور سے آپ کو پالا پڑے، بات بحث ہو کہ یہ جہاد وہ جہاد، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جہاد ایسا کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ جہاد کوشش کرنا ہے، جہاد اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نام جہاد ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کا نام جہاد ہے، اور دنیا میں ظلم کو مٹانا یہ جہاد ہے۔ اب ظلم کسی پر بھی ہو رہا ہو، ایک کافر پر بھی ظلم ہو رہا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ وہاں جہاد کرے۔ کس کے خلاف؟ اگر مسلمان اس کو ستا رہا ہے تو مسلمانوں کے خلاف آپ کو بات کرنی چاہیے۔ تو یہ جہاد ہے۔ یہ اس طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ جہاد کا مطلب کوشش کرنا کہ زمین پر عدل کا نظام قائم رہے۔ اب عدل، اگر کوئی مسلمان کسی کافر سے ظلم کر رہا ہے تو یہ عدل ہوا نہیں۔ کوئی بھی ظلم کرتا ہے، ظلم ہے، اور ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ آگے بڑھے اور اس کو انصاف دلائے۔ یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد اگر ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا نام جہاد ہے تو وہ بھی جہاد کو پسند کریں گے، اور لفظ جہاد کو بھی پسند کریں گے، جہاد کو بھی پسند کریں گے اور لفظ جہاد کو بھی پسند کریں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے آپ سے نفس کو، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ جہاد بالنفس یعنی گناہوں سے دور رہنا، جو بھی برائیاں ہیں اس سے دور رہنا، آنکھوں کی برائیوں سے دور رہنا، کانوں کی برائیاں، اپنے آپ کو صحیح راہ پر لانا، یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد بالمال، جو بھی اپنے پاس ہے اس سے انصاف کا نظام قائم ہو۔ دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتحاد آج ہمارے پاس نہیں ہے، اتحاد کی بہت کافی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس اتحاد نہیں تو ہم کمزور گر جائیں گے، ہماری ہوا نکل جائے گی۔ قرآن کی آیت میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر۔ گزشتہ مرتبہ میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبہ پڑھا تھا، کیونکہ جو اصل جہاد ہے امام حسین علیہ السلام نے کیا، جہاد بالمال بھی کیا، جہاد بالنفس بھی کیا، جہاد باللسان بھی کیا، اور جہاد بالسیف بھی کیا۔ امام حسین علیہ السلام کیوں نکلے ہیں، ان کا جو مقصد ہے، میں نے کہا تھا کہ انہی کی زبان سے اگر ہم سنیں گے تو زیادہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔
कि क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़ियाम किया। और गुज़िश्ता मरतबा ये खुतबा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से निकलते वक्त जो फरमाया था कि मैं कल निकल रहा हूं, क्यों निकल रहा हूं उस पर। लेकिन उससे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब वलीद बिन उतबा बुलाता है अपने दरबार में, वहां पर एक जो छोटा सा खुतबा है उसको आज हम देख लेते हैं कि क्या कहा इमाम हुसैन, क्योंकि शुरुआत तो वहां से हुई है। वलीद बिन उतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाता है और कहता है कि माविया मर गया है। अब माविया ने खत लिखा है कि आप और पूरे अहले मदीना से बैत लो, लिहाजा आप बैत करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐसी कैसी बैत कि मुझे अकेला बुलाकर आप बैत ले रहे हैं, अगर आप बैत लेना है तो सबके साथ लीजिए। तो एक मतलब वलीद तो ठीक है, वो समझ जाता है, लेकिन उसके सामने वहां पर मरवान खड़ा रहता है, मरवान बिन हकम। वो कहता है कि अरे वलीद, अगर तू हुसैन को आज जाने देगा तो फिर ये तेरे हाथ नहीं आएंगे। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अरे वलीद, अय्युहल अमीर, यानी वो अमीर है उस वक्त का, कहते हैं कि इन्ना अहले बैतुन नबुवा, तो बता रहे कि क्यों हम बैत नहीं कर सकते। ठीक है, या अय्युहल अमीर इन्ना अहले बैतुन नबुवा, क्योंकि हम नबुवत के घराने वाले हैं, हम ऐसे वैसे नहीं है, हम नबुवत के घराने वाले हैं। वह मादन रिसाला, हम रिसालत के मादन हैं, हम रिसालत के मरकज हैं। हमारा सफर रिसालत से शुरू हुआ है। वह मुख्तलिफुल मलाइका, हमारे पास मलाइका का आना जाना है, हम महल मलाइका हैं, यानी मलाइका हमारे पास आते हैं। रिसालत के मादन है, हम अहले बैत हैं। वह महल रहमा, और रहमत का मकान है हम। बिना फतल्ला व बिना खतमा, तो दीन की जो इब्तिदा हुई वो हमारे से ही हुई और दीन की खत्म भी हमारे ही से ही होगी। ठीक है, फतह व यजीद, और यजीद क्या है, यहां पर दो डिफरेंस बताया इमाम इस्लाम ने कि हम क्या हैं और यजीद क्या है। लिहाजा किस तरह हम यजीद की बैत कर सकते हैं, पहले ये सुन लीजिए, फिर मैं आपको उसका रिजल्ट बताऊंगा कि अभी क्या करना है। ठीक है, और यजीद क्या है, रजुलुल फासिक, वो फासिक इंसान है, फासिक इंसान है यजीद। ठीक है, रजुलुल फासिक, शारिबुल खम्र, शराब पीने वाला इंसान है। हम क्या है, अहले बैत नबुवा हैं, हमारे पास मलाइका आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे पास से रहमत आती है, हमारा दीन हमसे शुरू हुआ। और यजीद क्या है, यजीद शारिबुल खम्र है, शराब पीने वाला इंसान है। वकातिलुन नफ्सुल मुहर्रमा, और कत्ल करने वाला इंसान है, किसी को भी कत्ल करने वाला इंसान है, बगैर कोई उज्र के कत्ल करने वाला इंसान है। वह मूलिनुल फिस्क, यानी ऐलानिया फिस्क करने वाला है। वो छुप कर गुनाह करते हैं तो और बात है, लेकिन ये ऐलानिया गुनाह करने वाला इंसान है। दोनों की डिफरेंस बता रहे हैं। देखिए, हम क्या हैं, यजीद क्या है, हम क्या हैं, यजीद क्या है। ठीक है, अब कह रहे हैं वो मिस्ले ला युबायुल इस्लाम, मिसले, मेरे जैसा इस पैसे की बैत नहीं कर सकता। मेरे जैसा कहा, हुसैन यजीद की बैत नहीं करेंगे ऐसा नहीं कहा, मेरे जैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज भी अगर हमारे पास कोई ऐसा इंसान सामने है जो शराब पीता हो, दीन को, हमारे दीन को नहीं मानता हो, या हमारे दीन से दुश्मनी रखता हो, मोलिन फिस्क हो, यानी ऐलानिया फिस्क करने वाला हो, फासिक इंसान हो, और हम मुसलमान होने के नाते ऐसों की बैत नहीं कर सकते। और बैत का मतलब क्या है, पहले बैत होती थी, आज वोटिंग होती है। बैत एक वोटिंग ही है, वहां बैत करके हुकूमत
कायम की जाती थी, यहाँ वोटिंग करके हुकूमत हो रही है। इमाम हुसैन इस्लाम ने किस किस से मना किया? वोटिंग से मना किया है। यजीद जैसे इंसान को सेलेक्ट करने से मना किया, उसको एक्सेप्ट करने से मना किया है। और आज हम 500 रुपए देंगे तो जिसको चाहे उसको वोट दे देते हैं। बहुत सोचने की बात है, समझने की बात है। और फिर आकर यहां पर मजालिस करते हैं, यह भी सोचने की बात है। क्यों हम नहीं समझ रहे इस बात को? ठीक है, वो मिस्री ला युबायुली मिस्री, मेरे जैसा इसके जैसे की बैत नहीं कर सकता, इस जैसे को वोटिंग नहीं दे सकता। हाँ, हमको गुमराह किया जाता है, वोटिंग नहीं करेंगे तो फिर वोटिंग कार्ड चला जाएगा, नंबर चला जाएगा, ये चला जाएगा। उसको डरने की बात नहीं, जमीन अल्लाह की है। क्यों आप सिर्फ एक वोटिंग के कार्ड के पीछे पड़े हैं? असल चीज को समझो। अगर ऐसी बात होती तो हमारी यह हालत नहीं होती। सबके पास वोटिंग कार्ड है, सबके पास आधार कार्ड है, क्या अच्छा हो रहा है हमारा? वलाकिन नुस्बिहू वला तुस्बिहून, तुम भी सुबह करो, हम भी सुबह करेंगे, सुबह देख लेंगे क्या होता है। वलन तजीरू वतन तजीरून, तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करेंगे। अय्युल अहक्कु बिल खिलाफा वल बया, किसका ज्यादा हक है, कौन खिलाफत पर आने का हकदार ज्यादा है, कौन लायक खिलाफत है, इसको भी आज हमको समझने की जरूरत है। कि ये जो डेमोक्रेसी जो है, आज हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, कि डेमोक्रेसी कितना झोल है वो आपको नहीं मालूम। किस तरह हमको गुमराह किया जा रहा है। इसलिए इस्लामिक निजाम बहुत जरूरी है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम की भी जरूरत है। अल्लाह हम सबको इन चीजों की समझने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला